मतलब वो अपना बाइक उन्होंने बेच दिया है जस्ट टू मेंटेन हिज फिजिक, क्योंकि वो अभी उनका एक परसेप्शन बन गया है कि मेरा ये फिजिक है और लोग मुझे ये फिजिक की वजह से जानते हैं. नाउ आई कैन नॉट लूज इट एट एनी कॉस्ट. Hello, Buff Ahomia channel viewers. How are you? So, today I have somebody really special and really professional. His name is Himanshu Deka, and he is a licensed pharmacist. He's a professional fitness coach. He has been in this industry for a very long time. So, I would rather let Himanshu do the introduction. So, Himanshu, welcome to my channel. Thank you so much, Ipsha, for a warm welcome. So, guys, my name is Himanshu Deka, and I train people in both online and offline setting. And I help people to get them a new life. Also, I have an online school where I teach exercise, nutrition, programming, contest prep, and a lot of other interesting stuff. So, this is what I'm currently doing. Yep. That's wonderful, Himanshu. Thank you so much. But we will dive right into the most important questions. I am waiting to ask you these questions. So, first of all, let's get started. Now, what are the top three supplements for the general population, or they can consider those for the general well being? So the top three supplements according to me, and also I'm saying it not just for the gym goers, okay? It's for everyone. So my personal recommendation would be the first top supplement would be a vitamin D supplementation because it's very common these days. Almost everyone is vitamin D deficient nowadays. So yeah, there will be first my top supplement, vitamin D supplementation, and a good quality whey protein. And the third would be a good quality multivitamin where all the vitamin and minerals are meeting the RDA standard. Yeah. And also, one more I would like to add just for the women, one good iron supplementation. Yeah, that would be very helpful for them. Okay. Thank you so much, Himanshu. This is a very important question generally for the youth. Okay. So now I have observed your online presence, and a lot of young boys, they really recognize you. What I have noticed is that they also have a lot of depression kind of symptoms. Now we know that there are some studies that support how physical health, how getting into physical exercise can manage these depression symptoms. Now, how do you encourage these boys to get into the gym, and how do you talk about the positive effects of physical exercise vis-a-vis depression symptoms? Yeah. So, when it comes to mental health, depression, or sadness, it's a very vast topic to discuss. Still, I'll share what I have observed in the last couple of years. So, I have worked with a lot of young boys. Okay. So, what I have seen, आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं एंड मोस्ट ऑफ द बॉयज आर नाउ डेज सिंगल चाइल्ड बिकॉज इन्फ्लेशन एट इट हाइट. सो मम्मी पापा दोनों को काम करना पड़ता है. बॉयज़ है सिंगल चाइल्ड बॉयल्ड. और ऊपर से बॉयज़ का क्या होता है, पापा के साथ तो उतना कनेक्शन वो तो दूर की बात है, लेकिन वो इनफैक्ट अपने मम्मी के साथ भी बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं. सो आई थिंक व्हाट दे लैक इज़ ए एल्डरली फिगर जिसके साथ वो लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं. सो इससे क्या होता है, पहले हम लोगों का बॉयज़ का एक गैंग होता था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, 6, 7. अभी कोई ऐसा दोस्त वोस्त नहीं होता है. सो व्हाट दे डू, दे गो टू इंटरनेट और वहाँ पे जाके वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आजकल के जो कॉमन इश्यूज है लाइक पॉर्न एडिक्शन, गेम या फिर फ़ोन एडिक्शन, स्मोकिंग वीड एट्सेट्रा, दे नो ये गलत है और उससे उन लोगों का वो लोग एक गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं एंड दे फील बैड अबाउट इट. सो वहाँ से अगेन निकलने के लिए ये एक लूप साइकिल जैसा बन जाता है कि उन लोगों को पता है कि हम लोग जो कर रहे हैं ये गलत है, बट स्टिल दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी उनको पता है कि इट्स स्ट्रॉन्ग, बट रियल लाइफ में उन लोगों को ये समझाने वाला कोई एल्डरली फिगर नहीं होता है. बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए उन लोगों के पास कोई नहीं होता है. तो यहाँ पे व्हाट आई डू, मेरा एक सिंपल सा मेथड है या फिर मॉडल है जिसको मैं बोल सकता हूँ. मैं इसको बोलता हूँ एक पॉजिटिव फीडबैक लूप. जो हम लोगों का लाइफ क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का लाइफ एक पॉजिटिव फीडबैक या फिर निगेटिव फीडबैक लूप में चलता है. जैसे पकड़ लो, मैंने कल रात को सोचा कि आज सुबह मैं जल्दी उठूँगा, लेकिन सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाया, फिर जिम भी मिस हो गया. और ये जो स्मॉल स्मॉल लूजेस हम लोग जो एवरीडे एक्सपीरियंस करते हैं, ये एक मोमेंटम क्रिएट करता है
ओके, एंड उससे द रेबिट होल गोज डिपर इनटू डिपर. एट द सेम टाइम, लेट्स से अगर आप सुबह टाइम में उठ जाते हो कैसे भी करके, नाउ मे बी यू जस्ट मेड योर बैड, वेरी स्मॉल स्मॉल टास्क, अगर उसको आप कंप्लीट करते हो और उससे आप एक अगर पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करते हो, मोमेंटम क्रिएट करते हो, दैट विल अगेन मोटिवेट यू डू द गुड थिंग्स इन लाइफ. सो मैं क्या करता हूँ अपने बॉयज़ के साथ, आई ट्रीट देम लाइक माई यंगर ब्रदर्स. आई समटाइम्स आई स्कूल देम, समटाइम्स आई एक्सप्लेन देम कि ऐसा मत करो, इसका ऐसा ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है, वगैरह वगैरह. एंड येस, डेफिनेटली आई एनकरेज देम टू गो टू द जिम. और जिम से अभी जैसे हम लोगों को पता है कि बहुत सारे हम लोगों के पास डाटा है कि फिजिकल एक्टिविटी, it really helps a lot, boys with the depression and sad anxiety, etc. So yeah, I just encourage them to go to the gym just for the first couple of days, then they continue it एक बार जब habit form हो जाता है. We had to discuss this because I've observed a lot of the boys, they also come to your comment section, they come to you for guidance, and they do look at you as an elderly figure because you are so much in touch with these boys on a personal level, on a ground level. The experience that you get, you kind of understand where these things stem from, the root cause, what we're talking about. Now, moving on to the next important point. Now, I know for a fact that because you're so professional, a lot of athletes, they also come to you, and a lot of these athletes are also enhanced. So now, for my viewers, enhanced athletes are those who have taken performance enhancing drugs or drugs that either make them stronger, bigger, robust, make them faster, or give them an edge over people who are natural. So that is an enhanced athlete. Now, Himanshu must have trained a lot of enhanced athletes. We know that the young population are very gullible. They may be susceptible to other people telling them, okay, take this, take that. Now, what are the negative effects of taking PEDs in the long run? How do we talk about this to the young athletes? Okay, तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ द एनहांसमेंट और पीईडीज, मुझे एक पॉइंट क्लियर करना है. जब भी ऐसे बॉयज़ सोचते हैं कि हम लोग एनहांसमेंट लेंगे और हम लोगों का बॉडी बन जाएगा, फिजिक बन जाएगा जल्दी से जल्दी, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं है. मैक्सिमम बॉयज़ थिंक कि ये एक शॉर्टकट है या फिर ये एक चीट कोड है. अगर मैं इसको 3 महीने के लिए चलाऊंगा या फिर 2 महीने के लिए चलाऊंगा तो 2 महीने बाद मेरा एक बॉडी अलग सा बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो व्हाट आई वुड से कि अगर आप फिजिकली एक नेचुरली अगर आप अच्छा फिजिक नहीं बना सकते हो, you do not have that kind of mindset and the ethics and the hard work part, then आप steroid या फिर anabolics लेके भी आप एक अच्छा फिजिक नहीं बना सकते हो. सो दैट्स द मेन पार्ट. सो अगर चलो साइड इफेक्ट्स के बारे में तो वो सब है ही, लेकिन या अगर आपको एक्सरसाइज कैसे करना है नहीं पता है, हार्ड ट्रेनिंग कैसे करना है नहीं पता है, डाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो लाइफस्टाइल है, जो माइंडसेट है, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, देन एनाबॉलिक्स के बारे में सोचना ये बहुत दूर की बात है. ओके, सो हाँ, अभी एनाबॉलिक्स ये एक ऐसा, अगेन ये एक ऐसा लूप जैसा है. जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ, चलो 3 महीने का साइकिल चला लूँगा, उसके बाद और मैं कुछ नहीं करूँगा. सो लेट्स से किसी ने 12 वीक्स का या फिर 3 महीने का साइकिल चला लिया, उसके बाद उन लोगों का थोड़ा बहुत फिजिक इंप्रूव हो गया, बट जब साइकिल बंद हो जाता है, साइकिल बंद हो जाने के बाद वो लोग अच्छा खासा मसल लूज भी करते हैं. एंड अभी क्या होता है, बॉयज़ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम बॉयज़. तो ये एक लूप जैसा बन जाते हैं, है ना. तो दे अगेन टेक मोर एनाबॉलिक्स, दे अगेन इंक्रीज देयर डोजेस, एंड ये एक साइकिल में चलता रहता है. एंड बहुत सारे बॉयज़ इसके लिए डिप्रेशन या फिर सैडनेस, एनजाइटी, ये प्रॉब्लम में वो लोग पड़ जाते हैं. एंड इनफैक्ट मैंने देखा है कि एक ऐसा ट्रेनर को मैं जानता हूँ गुवाहाटी का, मतलब वो अपना बाइक उन्होंने बेच दिया है जस्ट टू मेंटेन हिज फिजिक, क्योंकि वो अभी उनका एक परसेप्शन बन गया है कि मेरा ये फिजिक है और लोग मुझे ये फिजिक की वजह से जानते हैं. नाउ आई कैन नॉट लूज इट एट एनी कॉस्ट. तो ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिससे बाहर निकल आना बहुत मुश्किल है. और बाकी यस, अगर आप लॉन्ग टर्म इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप बहुत
विदाउट एनी गाइडेंस बहुत हेवी डोजेस लोगे आप, देन आपका लिवर जाएगा, आपका किडनी जाएगा, आपका हार्ट फेलियर का, हार्ट स्ट्रोक का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, आपका ब्लड जो है बहुत बहुत थिक बन जाता है. सो अगेन दैट कैन ब्लॉक योर आर्टरीज, एंड इन वन लाइन आपका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है. सो स्टे अवे आउट ऑफ इट. As for what you said, so there is more of the negative effect that we see than the ROI that the young athletes are trying to chase, isn't it, Himanshu? यस यस डेफिनेटली. देखो, अगर मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप कंपटीशन के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, देन स्टेरॉइड के बारे में सोचो भी मत, ये आपके लिए है ही नहीं. इवन इनफैक्ट इफ यू आर ट्राइंग टू compete और जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, लेट्स से आपको एक compete करना है, देन आप एक कंपटीशन खेल लो नेचुरली, ताकि आपको खुद का पोटेंशियलिटी कहाँ है आपको पता लगे. देन यू माइट थिंक कि चलो मुझे ये रोड पे जाना है कि नहीं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द बॉयज दे थिंक कि मैं ये सब कर लूँगा, उससे मुझे मेडल मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा. ऐसा होता नहीं है. अगर आपका एक एलीट लेवल का जेनेटिक्स नहीं है, देन आप ये सब एनाबॉलिक्स लेके भी वो लेवल को मैच नहीं कर पाओगे. Okay. If you are watching this, please take Himanshu's advice. He has been in this industry for a very long time. He has seen things from the ground up. And if he's saying something, take it seriously because he knows what's up. Okay, now, February 27th is celebrated as National Protein Day. So this day is celebrated as Protein Day to talk about the importance of protein. But despite that, we still have not learned. Okay. Now, some say that according to their religious beliefs and practices, some items, mostly non vegetarian, it is not allowed. Now, how can we actually talk about the benefits of protein from both animal and plant based? Maybe without offending anyone, but just talking about the benefits. How do you approach this, Himanshu? तो फर्स्ट जो पॉइंट है, इंडिया में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, डाटा देखोगे इंडियन पॉपुलेशन का प्रोटीन कंजम्पशन को लेके, देन इनफैक्ट most of the non-vegetarians are also deficient in protein consumption, okay, per day. So वेजिटेरियन में देखो, वेजिटेरियन में क्या है, अगर आप एग भी नहीं खाते हो, देन आपके पास ऑप्शन है मिल्क का. अभी 75% पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, और जो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो मिल्क कंज्यूम करते हैं, वो लोग कंज्यूम करते हैं पैकेज मिल्क से. अभी इंडिया में मिल्क के साथ एडल्टरी का बहुत सारे केसेस है, आप लोग गूगल में भी देख सकते हो, न्यूज़ में भी देख सकते हो. तो जो पैकेज में जो मिल्क आता है, इट्स नॉट एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. अगर आपके पास ऐसा एक्सेस है जहाँ से आपको प्योर ऑर्गेनिक मिल्क मिल रहा है, देन तो यू आर वेरी लकी. बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. सो आपके पास अभी मिल्क है, और मिल्क का या फिर फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट, जो कि आपका हो गया कर्ड, हो गया पनीर, हो गया, ठीक है. अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी का फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है, देन स्टिल यू कैन मैनेज योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द होल फूड या फिर नेचुरल फूड. पर अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, देन इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू फुलफिल योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट. आप इसको एग्री करो या ना करो, इट्स रियली डिफ़िकल्ट. सो ये केस में अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, देन एक प्रोटीन सप्लीमेंटेशन आपके लिए बहुत नेसेसरी बन जाता है. वे प्रोटीन, या फिर वे प्रोटीन कंसेंट्रेट, या फिर वे प्रोटीन आइसोलेट. सो या दैट्स फॉर वेजिटेरियन गाइज. So we have this constant conversation, rather, I would not say debate. So this is a conversation about which is a better source of protein. Would it be animal products or the plant-based products? Now we know that both of them, if you really cannot compare them side to side. So Himanshu, how can we really talk about this and talk about which is, let's say somebody layman is asking, okay, bhaiya kaun sa better hai? I can eat both. Which is better, animal or plant? So how can we answer this for them? Okay, to answer this question, hands down, animal proteins are way more superior than plant protein. ओके, अभी जैसे मैं बात कर रहा था वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में, मैं तो मिल्क के बारे में बात कर रहा था, बट मिल्क इज अ नॉट प्लांट बेस्ड प्रोटीन, राइट. मिल्क इज़ नॉट अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन. मिल्क भी आपका एनिमल से ही आता है. एंड चलो, ये पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं शेयर कर देता हूँ. अगर मिल्क वेजिटेरियन है, देन जो फार्म के जो एग्स है वो भी वेजिटेरियन ही है, बिकॉज इट इज़ अनफर्टिलाइज्ड एंड बोथ कम्स फ्रॉम द एनिमल.
Okay, now talking about the animal based protein food and plant based protein food. Hands down, animal based protein foods are way more superior because इसका आप बायोअवेलेबिलिटी देख लो, इसका आप एमिनो एसिड प्रोफाइल देख लो, एंड या एंड ऑल्सो डाइजेशन पार्ट देख लो. इट इज़ वे मोर सुपीरियर. जैसे जैसे एक स्कोर है, DIAA स्कोर, जिससे आपका डाइजेस्टिबिलिटी का चेक किया जाता है फूड का. राइस का आई थिंक DIA स्कोर इज समथिंग अराउंड 30 to 40, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट इट इज़ वेरी लेस. राइस का हो गया या फिर सोय का हो गया. सोय का बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, बट विथ कंपेरिजन टू सोय एंड राइस, अगर आप DIA स्कोर देखो चिकन का, एग्स का, इट इज़ वेरी हाई. मतलब ये स्कोर क्या देखता है कि आपके शरीर में कितना प्रोटीन डाइजेशन हो रहा है और कितना बाहर जा रहा है. सो इन टर्म्स ऑफ दिस, एनिमल प्रोटीन इज सुपीरियर. और अगर आप एमिनो एसिड प्रोफाइल देखो, मतलब एसेंशियल एमिनो एसिड प्रोफाइल देखो. एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है? जो हम लोगों का बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, सो हम लोगों को बाहर से लेना ही पड़ेगा. सो इवन इन दैट केस ऑल्सो, हम सभी को पता है कि राइस कुछ कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड में लैक करता है, जैसे मिथ्योनिन हो गया, ट्रिप्टोफान हो गया. इसलिए हमको राइस और दाल को कंबाइन करना पड़ेगा टू मेक इट ए कंप्लीट एसेंशियल एमिनो एसिड प्रोफाइलिंग. जैसे राजमा और चावल, इसको कंबाइन करना पड़ेगा. ओके, इवन इसको कंबाइन करने के बाद भी इसका जो टोटल बायोअवेलेबिलिटी रहता है वो थोड़ा कम रहता है, बिकॉज इट्स ए प्लांट बेस्ड प्रोटीन. So for general population, for Gen Pop clients जो इप्शा मुझे पूछ रहे थे कि एक लेमन जिसके पास दोनों ऑप्शन है, देन आप क्या कर सकते हो ना, आप एक हाई DIA स्कोर वाला प्रोटीन फूड लो और उसके साथ आप एक लो DIA वाला प्रोटीन फूड अगर आप लेते हो, देन दे कंपनसेट ईच अदर. जैसे राइस एंड चिकन. ओके, जैसे राइस एंड एग्स. सो इट इज़ वे मोर सुपीरियर. और अभी तो मैं प्रोटीन के बारे में बात कर रहा था. अगर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी देखेंगे, देन तो इट इज़ अगेन ए गेम चेंजिंग टॉपिक टू डिस्कस. जैसे एग्स इज ए सुपर फूड, वी ऑल नो. आपको ऑलमोस्ट विटामिन बी, आपको सी के अलावा ऑलमोस्ट लगभग हर वो विटामिन आपको एग योक में मिल जाएगा, बट प्लान में ऐसा नहीं है. बट नाउ आई एम नॉट सेइंग कि प्लान प्रोटीन फूड्स आर बैड. प्लान के अलग एडवांटेज है, जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन प्लांट्स, राइट. विटामिन सी इज फाउंड इन प्लांट्स. सो हमको हमेशा दोनों को कंबाइन करना चाहिए, जैसे राइस चिकन, राइस एग्स, या फिर साथ में थोड़ा बहुत फ्रूट हो गया, साइट्रस फ्रूट हो गया. अगर हम लोग ऐसे कंबाइन करके खाएंगे, देन इट विल बी मच बेटर फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ. See, we have liver also when we eat chicken liver, this mutton liver as well. These are proper nutrient packed foods. These are probably gift from the gods, you know. If you can eat that without feeling like, oh my god, it's bad, you are going to benefit a lot from this. Himanshu, what do you have to say about organ meat? Absolutely, man, absolutely. Organ meats are superfood. It's a gift from nature. तो जैसे अगर आपके रिलीजन में अलाउ है, जो भी मीट आपके रिलीजन में अलाउ है, जैसे हम लोग चिकन खाते हैं या फिर गोट खाते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कंज्यूम दोज ऑर्गन मीट्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. दे आर सुपर फूड. अगर आपको जैसे गोट का ऑर्गेनिक लिवर अगर आपको मिलता है, देन आपको मल्टीविटामिन खाने का ज़रूरत नहीं है अलग से. पर अगेन इट हैज़ टू बी प्रोपोर्शन. इसको आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा डाइट में, बट या इट्स सुपर फूड. If you are the general public, you can really see these good effects in your blood report. You know, if you take these sources very seriously, according to what Himanshu has proposed, you will actually see progress in your blood reports, and the proof is in the pudding. Let's say we know that market may there's a lot of fake supplements, like a lot of fake whey products. So how can we tell the general public that whey is so and so product, and if you cannot have it through food sources, the last option you have is whey. So how can they select an authentic whey? How do they know what is an authentic whey for them? ओके ओके, नाइस नाइस. अगेन यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे मन में आ रहा है. जैसे मेरे फार्मर्स में बहुत लोग ऐसे आते हैं, और जब लोग मल्टीविटामिन खरीदते हैं या फिर कुछ ऐसे फिश ऑयल वगैरह खरीदते हैं, दे थिंक इट्स ए मेडिकेशन, दे थिंक इट्स ए मेडिसिन. एंड दे ऑफन टेल मी कि अभी मेडिसिन में पूरा ज़िंदगी तो नहीं कर सकता है ना, कि हर रोज़ के मेडिसिन खाते रहते हैं.
रहे क्या. सो इट्स नॉट दैट ओके, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ये आपके लिए नेसेसिटी है. जैसे एक मल्टीविटामिन हो गया, या फिर जो विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन हो गया, या फिर एक अच्छा क्वालिटी का वे प्रोटीन हो गया. ये आपको ऐसे नहीं देखना है कि ये मैं एक महीना खाऊंगा उसके बाद पूरा साल नहीं खाऊंगा. इट्स लाइक ईटिंग राइस एवरी डे, you're drinking your water every day, because there are some RDA गाइडलाइन जो इसीलिए बनाया जाता है कि आपको मिनिमम ये मैक्रो न्यूट्रिएंट एवरीडे आपके बॉडी में चाहिए टू परफॉर्म, टू मेंटेन योर ओवरऑल ऑप्टिमल हेल्थ, राइट. सो हाँ, टॉकिंग अबाउट वे प्रोटीन में देर आर सम ब्रांड्स इन मार्केट. जैसे एक हो गया सात्विक फूड बोल के हो गया, नेचुरल टीन इज़ ऑल्सो ए गुड ब्रांड. तो वहाँ पे आपको, लेकिन ये लेमन के लिए शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट आपको इंग्रेडिएंट में देखना है वहाँ पे इंग्रेडिएंट क्या क्या है. और जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर, उनको बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपने ऑडियंस के साथ. जैसे पूरा जो एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल है, इट शुड बी मेंशन ऑन द प्रोडक्ट कि हम लोगों के पास ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, इतना इतना है. और वहाँ पे कोई भी जैसे ये सब नहीं लिखा होना चाहिए. इट्स अ ब्लेंड प्रोटीन मतलब आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कंसनट्रेट कितना है, कितना आइसोलेट है, और हुए पाउडर कितना है. इट शुड बी प्योरली हुए कंसनट्रेट 80% ऐसा होना चाहिए. और हाँ, थोड़ा बहुत तो ये सब मिक्स रहेगा आपका, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया, थोड़ा सा फ्लेवरिंग वगैरह ये सब हो गया. बट इन जनरल इट शुड बी हुए प्रोटीन कंसनट्रेट 80%. इंग्रेडिएंट में अगर ऐसा लिखा है और बाकी यहाँ पे ब्लेंड नहीं लिखा है, हुए पाउडर नहीं लिखा है, इट शुड बी ए गुड ब्रांड. एंड वन मोर थिंग, चीप नहीं होना चाहिए. हुए प्रोटीन इज नॉट चीप. Yes, Himanshu is here addressing the very important, very prime points. In fact, now Himanshu, with a dice rolling, okay, if you had to choose one kind of workout that is either compound or isolated movements, what would you choose and why? Okay, so first of all, I understand where you're coming from, and I understand the question as well. बट ये जो आइसोलेशन एंड कंपाउंड मूवमेंट का जो ये जो क्लासिफिकेशन है, इट्स काइंड ऑफ फॉल्टी. ओके, इट्स काइंड ऑफ फॉल्टी, बिकॉज जब हम लोग ऐसे बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट मतलब क्या, मल्टीपल जॉइंट्स आर एंगेज इन दैट मूवमेंट, राइट. सो बाइसेप कर्ल इज आइसोलेशन मूवमेंट. बट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल जॉइंट ऑलरेडी इन्वॉल्व है. तो आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है बाइसेप कर्ल में, आपका एल्बो भी है, आपका रिस्ट भी है. ओके, सो या, बट आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग फॉर मोस्ट पीपल, अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट आंसर देना है कि मुझे या तो फिर आइसोलेशन या फिर कंपाउंड, देन आई वुड गो विथ कंपाउंड एक्सरसाइजेस. Himanshu, during the week, how often do you work out, or how can we recommend the general population to start if they are very scared of going to the gym? Rather, how do you start? Okay, so personally, I train 7 days a week. I do not take any kind of rest. I do something every day. But if someone is absolute beginner, he is just thinking to go to the gym, then I would say just start with bare minimum. Just go first 2 days. Then again आपके बॉडी में बहुत पेन होगा. टेक सम रेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 or 4 days, देन अगेन गो. एंड वैसे वैसे आप अपना जो डोजेस है या फिर जो वॉल्यूम हम बोलते हैं, यू कैन इंक्रीज दैट आफ्टर सीइंग योर रिकवरी. यू लिसन टू योर बॉडी कि आपका अभी कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, अडेप्टेशन कैसा हो रहा है. या सिंपल इट्स, ये सब को लेके ना बहुत लोग इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं कि क्या करो क्या ना करो. स्टार्ट विथ बेयर मिनिमम एंड सी हाउ योर बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग टू इट, एंड बाय सीइंग दैट यू जस्ट इंक्रीज योर डोजेस. Sweet, sweet. So start very slow. It is like something you are going to do for the rest of your life. So you might as well start and rather build on it, because you are not trying to eat the whole plate all of in a day and then talk about, oh my god, that was terrible, I'm never going to do it. It's not that. It's something to do on a long term basis. So what is Himanshu Deka's plan for 2024? Okay, so my main and the most important plan is that I need to become very regular with my social media content.
So I am planning a few things. I'll be I'll be doing regularly my YouTube as well Instagram. So that's my biggest plan for now. Rest will be rest will be happening as usual. Tell us something about your academy. When did your academy HDA start? A little bit about it. Okay, so my HDA started 1.5 years ago, and now I am running my third batch. I am at the end of the third batch. It's going pretty smooth, and I'm really liking it. Also, the feeling that you are able to changing someone's life for a better, it's a really amazing feeling. It's a really amazing experience. So yeah, it's going awesome. And HDA is not just about exercise and nutrition, as I said many times in my social media account. It is a life changing game for most of people because we talk a lot of things apart from exercise and nutrition, like personality development, mental health, and sometimes we talk about relationship as well, relationship with your mom, with your family, and sometimes we talk about some spiritual things as well. So yeah, we talk a lot of things, and it's awesome. It's awesome. That's wonderful. I will link HDA Academy's link in the description. And now, Himanshu, closing lines. Could you give one good advice to the youth of today's generation? Okay, it was unexpected. So, if I need to give just one advice today's generation, so I'll address to the boys. Okay, I'll address to the boys because frankly speaking, I really think that जो हम लोग boys है या फिर जो हम लोग men हैं, if they become good, if they become correct, a lot of the other problems will be solved automatically. So my single one piece of advice would be become competent, become responsible, become accountable, take care of yourself because you are the most important person in your life. If you can take care of yourself, only then you can take care of your loved ones. So prioritize yourself, become competent, responsible, and accountable, and do the good things, and take care of your family. That's it. So Himanshu is asking you to be a badass. Okay. Yeah. So Himanshu, thank you so much for taking the time out actually for this podcast. You have shared a lot of important golden points that we all need to learn. Even athletes, we have to note these points because these athletes are going to share this information to to the younger audience, to the newcomers who are coming for rather the gym program. As I really hope that our Buff Ahomya viewers will love this episode. And with that, I am signing off with Himanshu Deka. I will see you in the next video. Bye. Thank you so much, Ifsha, for having me. Bye bye. Take care.